السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ہمارے اس چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو میرے اس چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح اسلامک ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ جو ہے نا اسلامک ویڈیو سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ آئیے آج ہم اللہ کی رحمت کے متعلق بات کرتے ہیں، رب کی رحمت کے بہانے کے متعلق بات کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندہ رب کے حضور ان کا اعمال نامہ پیش کیا جائے گا۔ رب ذوالجلال اس بندے کو اپنے سامنے رکھے گا اور وہ بندہ رب کے قہر و غضب سے جو ہے وہ بالکل ہی دہل رہا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے نام اعمال کی فہرست کو وہاں پر پڑھا جائے گا اور بندے اس کو سماعت کریں گے۔ اللہ اکبر! ذرا سوچے تو صحیح کہ وہ مقام اور وہ اپنے تصور کی دنیا میں جا کر کے دیکھے کہ وہ کیسا محشر بپا ہوگا اس بندے کے لیے، اور اس وقت کا سوچ اور اس وقت کی فیلنگ کیا ہوگی۔ اللہ اکبر! رب ذوالجلال پھر کرے گا کیا کہ اس بندے کے نام اعمال میں سے سب سے پہلے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو پڑھا جائے گا، سب سے پہلے چھوٹے چھوٹے گناہوں کی گنتی ہوگی۔ دیکھیں، ایک قانون یاد رکھیں کہ جب کسی چیز کی جب گنتی کی جاتی ہے یا پھر کوئی ایسی چیز کا جب معاملہ جب سامنے آتا ہے تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ چھوٹے سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ جب 0 سے سٹارٹ ہوگا تبھی جا کر کے 100 تک جا کر کے انسان پہنچے گا۔ جب تک انسان 1 2 3 کی گنتی نہیں شروع کرے گا تب تک وہ انسان 100 جیسے بڑے انک تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تو رب ذوالجلال جو ہے نا اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کی پہلی گنتی کرے گا، اور گنتی کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے کہے گا کہ اے بندے بتا یہ گناہ تمہارا ہے؟ تو بندے کہے گا ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ہے رب ذوالجلال، ہاں یہ گناہ میرا ہی ہے، میں نہیں کیا ہے یہ گناہ۔ پھر رب ذوالجلال فرمائے گا دوسرا گناہ پڑھے گا، اور دوسرا گناہ پڑھنے کے بعد کہتا ہے کہ اے بندہ بتا یہ گناہ کیا تم نے کیا تھا؟ کہا کہ ہاں ہم نے کیا تھا رب ذوالجلال، میں نے ہی یہ گناہ مجھ سے ہی سرزد ہو گئی تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تیسرے گناہ کو پڑھے گا، چوتھے گناہ کو پڑھے گا، پانچویں گناہ کو پڑھے گا، نہ جانے اس قدر سینکڑوں نہیں ہزاروں نہ جانے کتنے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو پڑھ کر کے سنائے گا، اور بندے سے پوچھے گا کہ اے بندہ بتا کیا تو نے یہ گناہ کیا ہے؟ اب وہ بندہ جو ہے نا اپنے ذہن و فکر میں سوچتا ہے کہ یا اللہ یہ کیسا معاملہ ہے کہ ابھی چھوٹے چھوٹے گناہوں کے معاملے بارے میں یہ حساب و کتاب لیا جا رہا ہے، پتہ نہیں ہم نے تو بڑے بڑے گناہ بھی کیے ہیں۔ جب چھوٹے چھوٹے گناہوں کا جب بدلہ مجھے دیا جائے گا تو پھر ہمارا ٹھکانہ جہنمی ہو سکتا ہے۔ پھر بڑے جب گناہ جب شمار کیے جائیں گے تو پھر ہم رب کی رحمت سے ہم نظریں ملا سکیں گے۔ لیکن اللہ کی رحمت کا کیا کہنا، اللہ کی رحمت کہتی ہے نا کہ بہانہ تلاش کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام چھوٹے گناہوں کو گنتی کر لے گا۔ گنتی کرنے کے بعد اب رب ذوالجلال اس بندے سے کہتا ہے کہ اے بندے میں نے یہ جتنی بھی چھوٹی گناہ تم نے کیا ہے میں ان تمام چھوٹی گناہوں کو ہم نے نیکیوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ سبحان اللہ! یہ تمام چھوٹی گناہ ہم نے نیکیوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ یہ کس کے بدولت ہوئی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اے میرے بندے تو فاں گلی میں تم کسی وقت رات کے اندھیرے میں سفر کر رہا تھا، جا رہا تھا، تمہارے پیروں کے سامنے کچھ پتھر آئے جسے تم نے سوچا کہ اس پتھر سے آج ہم بچ گئے ہیں، لیکن کوئی بوڑھا اور بوڑھی اگر کوئی ضعیف العمر کوئی انسان آئے گا ہو سکتا ہے اس پتھر سے ٹھوکر کھا کر کے وہ گر جائے گا، تو تم نے اس سوچ کے ساتھ اس پتھر کو اٹھا کر کے تم نے کنارہ کر دیا تھا۔ میری رحمت کو یہ بات بڑی پسند آئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہماری رحمت جو ہے وہ بہانہ تلاش کرتی ہے۔ دیکھیں رب بہانہ تلاش نہیں کرتا ہے، معاذ اللہ، رب کو بہانے کی ضرورت نہیں۔ ہم نے کیا ہماری لفظوں پر آپ غور کریں گے، رب کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے۔ تو رب کی رحمت نے اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اب کہتا ہے کہ میری رحمت نے تمہاری طرف متوجہ ہوا، اور پھر تمہیں اس نیکیوں کی بدولت میں تمہاری ساری گناہوں کو معاف کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تجھے جنت عطا کر دیا ہے۔ اب بندہ جو ہے اتنا خوش ہوتا ہے، بندہ اتنی خوشی کے ساتھ میرے مصطفیٰ جان کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساتھ فرماتے ہیں کہ پھر وہ بندہ کہتا ہے کہ اے رب ذوالجلال یہ تو چھوٹے چھوٹے گناہ تھے، آپ نے تو بڑے بڑے گناہ ہمارے گنوانا چھوڑ ہی دیے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے بندے میں نے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیا ہے، اور ہم نے جو
बड़े बड़े गुनाह जो तुमने तुम्हारे सामने नहीं पड़े हैं, हमने उसको भी नेकियों में बदल करके तुझे जन्नत उसके एवज में अता कर दिया है। सुभान अल्लाह, ये है रब की रहमत। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लेकिन एक बात मैं आपके सामने में ज़रूर कहूँगा। सरकार हुजूर आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं कि ऐ बंदे, कि तुम ऐसा काम करो ही नहीं जिससे जो है ना रब की रहमत को जो है बहाना तलाश करने की ज़रूरत पड़े। यानी कि अब ज़िंदगी में बंदा कोई एक दो काम नेकियों का किया रहेगा तो फिर रब की रहमत का जो है ना वो बहाना तलाश करनी पड़ेगी। वो जैसे कि कोई चीज़ खो जाता है तो इंसान तलाश करता है। और सरकार आला हज़रत शाह फरमाते हैं कि तुम नेकियां इतनी करो कि रब की रहमत वहाँ पर बहाना नहीं बल्कि मुकद्दमा लगा करके कहे कि ऐ रब ज़ुजलाल कि ये बंदे जो है ना एक दो नेकियां नहीं बल्कि इसकी पूरी ज़िंदगी नमाजों से भरी पड़ी हुई है, रोज़ा से भरी पड़ी हुई है, ज़कात से भरी पड़ी हुई है, ये नेक अमाल सालिहात से इसकी ज़िंदगी पूरी भरी पड़ी हुई है। तो मेरे अजीज़, तो आप नेकियां दर नेकियां करते चले जाएं ताकि रब की रहमत को मज़ीद जोश आए और आपको जो है ना इन आमाल सालिहा के बिना पर अल्लाह तबारक व तआला जो है जन्नत अता करे। एक बात और मैं बता दूं कि ये जो जितने भी आमाल है ये इंसान का जन्नत ले जाने का एक बहाना है। जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान जैसा मुक़द्दस महीना दिया, शब बरात जैसा मुक़द्दस महीना दिया, और भी बहुत सारे ऐसे महीने मिले हैं जिसमें इंसान इबादतें करते हैं, रियाजतें करते हैं, रात रात भर जागते हैं। ये ज़रूर इबादत किया जाता है और करते भी है, लेकिन जानने के ये रब के जानिब से जो है ना एक बहाने वाली रातें मिली हुई है जिसके सदके और जिसके बदौलत से हम जन्नत जा सकते हैं। लेकिन बंदा कभी भी अपने आमाल पर तकब्बुर न करे, क्योंकि जब इंसान अपने आमाल पर तकब्बुर करता है तो एक इब्लीस था जिसने अपने आमाल पर तकब्बुर किया था, अपने इल्म पर तकब्बुर किया था, रब के हुक्म की अदूली किया, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने लानत के तौक़ उसके ऊपर डाले। तो हम आमाल के बिना पर यकीनन आप आमाल करें, लेकिन आमाल के बिना पर कोई भी इंसान जन्नत में नहीं जाएगा। आइए एक रिवायत में इसके हवाले में पेश कर देता हूँ। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इस रिवायत को नकल किया कि एक बंदा कि रब की बारगाह में उसकी अर्जी लगती है। मैं पहले शुरू से इस रिवायत को मैं बता दूं कि एक माँ थी जो हामला थी और उसका शौहर जो है कि कुछ दिनों पहले उसका शौहर उससे जो है ना जुदा हो गया, यानी कि इंतकाल कर गया। अब जब शौहर जब इंतकाल किया तो वो जो विरासत में जो छोड़ करके गया शौहर, तो उसकी माँ के शिकम में जो है ना वो बच्चे की जो हमल ठहरा हुआ था, तब उसका शौहर दुनिया से इंतकाल कर गया। अब जब बच्चे की जब परवरिश यहाँ जब ससुराल में रहे, शौहर है ही नहीं है, तो इसकी खिदमत कैसे हो सकती है, इसकी देखभाली कैसे हो सकती है। इसलिए खातून सोचती है कि हमारी देखभाली करने के लिए हमें अपने मैके चला जाना बेहतर है, क्योंकि घर में शौहर तो है नहीं है और बच्चे की जो है ना उम्र धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता बढ़ती चली जा रही है। 2 से 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, यहाँ तक कि जब आखिरी जब हद आया यानी कि 9वें महीने के जब पड़ाव में आई तो वह खातून आप कहने लगती है कि अब मुझे अपने मायके चली जाना चाहिए। अब इस इरादे से वो अपने घर से निकलती है। जब निकलती है तो मामला ये होता है कि उसके मायके जाने का जो सफ़र होता है, जो रास्ता जो होता है, वो जंगल होते हुए गुजरती है। अब वो खातून जा रही है, फिर क्या हुआ कि शिकम बड़े होने की वजह से, चूंकि पहले का सफ़र तवील हुआ करती थी और पैदल सफ़र लोग किया करते थे, तो उसने जंगल में ही कहीं पर आराम करने के लिए सोचा और आराम करने के लिए बैठ गई। फिर क्या हुआ कि आंख लगी, काफ़ी देर तक वो सोई की सोई रहेगी। शाम हो गई। अब शाम जब हुई तो उसकी जब नींद टूटती है तो देखती का पूरा जंगल सुनसान है और पूरे जंगल में जो है ना सन्नाटा छाया हुआ है, जानवरों की जो है ना एक जम्मे गफीर है। अब वो औरत जो है ना डर के मारे, अब मामला ऐसा हुआ कि उसके शिकम में दर्द महसूस हुआ और दर्द इतनी तेज़ी के साथ हुई कि उसकी जान चली गई। लेकिन बच्चे को दुनिया में जन्म देने के बाद बच्चे दुनिया में जन्म हुई। अब बच्चे जो है ना वो किस्मत से देखे कि लड़का पैदा हुआ, किस्मत से लड़का पैदा हुआ। अब वो लड़का जो है ना, अब बच्चा दूध पीता हुआ बच्चा अभी पैदा ही हुआ है। अब माँ की छाती से उसका मुंह तो लग नहीं रहा, अब बच्चे बिलबिला रहे हैं, रो रहे हैं। अचानक क्या देखा जाता है कि एक शेरनी दौड़ते हुए आती है। अल्लाह
जिसे चाहे जंगल में भी हिफाजत कर लेता है और अल्लाह तबारक व तआला उसे वहाँ भी रिस्क पहुँचाता है। अब जो शेरनी वहाँ पहुँचती है, पहुँचने के बाद शेरनी की जो ममता थी वो जागती है और उस बच्चे को अपने सीने से लपेटती है और वो शेरनी जो है ना उस बच्चे को दूध पिलाती है। सुभान अल्लाह। अब मामला ऐसा हुआ कि वो शेरनी उस बच्चे को दूध पिलाती जा रही है और वो बच्चा जवान होता चला जा रहा है, जवान होता चला जा रहा है, यहाँ तक कि उस बच्चे की उम्र 11-12 साल। अब जो शेरनी और शेर के जब वो बच्चे जब उसके किफालत में आ गए तो तमाम जानवर भी उससे मोहब्बत करने लगे। अब ये बच्चा जो है ना कभी आदमी के माहौल में तो रहा नहीं, कभी इंसानों के मोहल्ले में वो गया नहीं, तो इंसानों से इनका कोई ताल्लुक नहीं। और एक गुनाह उस वक्त होता है जब इंसान इंसानों की आबादी में होता है, एक दूसरे से मेलजोल लगता है, तब जाकर के गुनाह हो जाया करते हैं। अब ये बंदा जो है पूरी जिंदगी जो है वो जंगल में काटा और जंगल में गुजारा, आखिरकार उससे भी मौत आई। आखिरकार मरना तो सबको है, चाहे वो जंगल में रहे, चाहे वो मोहल्ले और शहर में रहे, चाहे वो कस्बा में रहे, चाहे कहीं भी रहे, मरना तो हर इंसान को है। उस इंसान को भी मौत आई और मौत आने के बाद अब मामला ये हुआ कि रब के हुजूर उसको पेश किया गया। अब रब ज़ुलजलाल कहता है कि ऐ फरिश्तों, मैं अपनी रहमत से इसे मगफिरत का परवाना देता हूँ, बख्शता हूँ और इसे मेरी रहमत से इस बंदे को जन्नत अता करो। तो वो बंदा वहां पर अकड़ के कहता है, खड़ा होता है और कहता है, रब्बे ज़ुलजलाल, यहां पर तेरी रहमत कहां आई? मैंने तो पूरी जिंदगी जंगलों में गुजारी है। गुनाह तो उससे होता है जो इंसानों की आबादी में रहता है, हमने तो इंसानों की आबादी देखा नहीं है। और ऐ रब्बे ज़ुलजलाल, और हमने जो है ना पूरी ज़िंदगी तेरी इबादतें की है, तो तेरी बदौलत, तेरे ही सदक़े से हमने तेरा नाम लिया है। ऐ रब्बे ज़ुलजलाल, तो इसमें तेरी रहमत कहाँ से आ गई? हम अपनी इबादत और अपने ईमान के बिना पर हम जन्नत में जाएंगे। तो रब्बे ज़ुलजलाल कहता है कि ऐ फरिश्तों, दूसरा रजिस्टर जो मैंने इसके नाम अमाल के नहीं खोले हैं, वो दूसरा रजिस्टर लेकर के आओ। जब रजिस्टर को लाया जाता है, मीज़ान किया जाता है, यानी कि तौला जाता है। जब उसके नेकियों के पल्ले, जब नेकियों को जब पल्ले पर रखा जाता है और ये एक रजिस्टर जो था उसको एक पल्ले पर रखा जाता है, मामला ये होता है कि ये जो बाद में लाई जाने वाली जो रजिस्टर थी उसकी जो आमाल थे वो भारी पड़ गए, और जो बाद वाली जो पहले जो आमाल जो नेकियों के जो रजिस्टर थे वो हल्के पड़ गए। अब रब कहता है कि ऐ फरिश्तों, इसको जहन्नम में लेकर के जाओ, अब इसे जहन्नम में लेकर के जाओ। अब वो बंदा कहता है कि रब, मुझे समझ में नहीं आया कि ये दूसरा रजिस्टर आखिरकार ये कौन सी नेकी का था, ये कौन सी ऐसी गुनाह का था कि जिसके बदौलत मुझे जन्नत से जहन्नम में भेजा जा रहा है, ये कौन सा गुनाह था? रब कहता है कि ऐ मेरे बंदे, तू बचपने की जिंदगी गुजार रहा था, बड़ी मायूसी थी तेरे चेहरे के ऊपर, तू एक पत्थर के टीले पर बैठ करके कुछ छोटे छोटे पत्थरों को उछाल उछाल करके अपने हाथों से खेल रहा था, और उसी दरमियान में एक जानवरों का, एक मेरे मखलूक का, बेजुबान जानवरों के एक गिरोह गुजरा, और उस गिरोह के ऊपर तूने उस उछलते हुए पत्थर जिससे खेल रहा था तूने उस जानवर के ऊपर फेंका था, जिससे मेरे उस बेजुबान जानवर को चोट लगी थी और उसे दर्द महसूस हुआ था। बंदा बता, ये भी तो एक गुनाह है, ये भी तो एक गुनाह है मेरे अजीज। तो कहा कि ये वही तुम्हारा गुनाह था जिसको मैंने छुपा रखा था, लेकिन तूने जब कहा तो मैंने इसे खोल करके दिखाया, अब इसके बदौलत तुझे जहन्नम में भेजा जा रहा है। अब फरिश्ता उसकी घसीट करके जहन्नम में लेकर के जा रहा है। अब बंदा बार बार पीछे पलट पलट करके देखता है, पलट पलट करके देखता है। तो रब कहता है कि ऐ बंदे, क्या देखते हो, जाओ जहन्नम में जाओ। तो बंदा कहता है, ऐ रब, मैं तेरी रहमत देख रहा हूं कि तेरी रहमत कब जोश मारेगी। अब रब ज़ुलजलाल कहता है, फरिश्तों, इस बंदे को जो है ना मेरी रहमत का अंदाजा लग गया है, मेरी रहमत का पता लग गया है, अब इसे जो है ना जहन्नम के बजाय जन्नत में रखो। ऐ मेरे अजीज, तो कोई भी बंदा अपने आमाल के बिना पर जन्नत में नहीं जाएगा। बंदा जाएगा तो ईमान के बिना पर जाएगा, रब की रहमत के बिना पर जन्नत में जाएगा। ऐ मेरे अजीज, और एक बात मैं कह दूं, सरकार फरमाते हैं कि जो बंदा छोटे गुनाह करता है और उस छोटे गुनाह को भी छोटा नहीं समझता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उस छोटे गुनाह को बड़ा गुनाह बना देता है। इसलिए आप छोटे गुनाह भी करते हैं, गुनाह तो गुनाह है, गुनाह तो गुनाह है, इसलिए गुनाह को गुनाह ही समझे और उससे दूर हो जाएं। और अगर बतकाज़े बशरिया, अगर इंसान होने के नाते से अगर गुनाह हो जाते हैं और कोई समझाने वाला बंदा मिल जाए तो अपने गुनाह का एतराफ़ भी कर लो
اور توبہ کر لو، توبہ کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ آج کا ویڈیو جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، انشاءاللہ اس واقعے سے آپ بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ مجھے اور آپ کو، سبھی حضرات، سبھی مسلمان بھائیوں کو ہر چھوٹی بڑی گناہوں سے محفوظ و معمون رکھے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔